Hello students, how are you all? So today I am here with you to take a session on MCQ questions based on the chapter Life Processes. Since we were not able to complete the light chapter before vacation, that's why I am taking up this chapter, and you have to make a practice of MCQ questions because there will be 20 marks question in your board examination from all the chapters of your textbook. Okay, so take your classwork copy and pen, write down the questions, pause the video again and listen to the concepts, and if you know the answer, just write down the answer so that at the end of the video you can be able to calculate about yourself that how much you know about the chapter. Okay, if you are not knowing any answer, no problem, I will give you concept of every question. So ready? So here comes the first question. Which of the following are energy foods? Carbohydrates and fats, proteins and minerals, vitamins and minerals, or water and roughage? What are energy giving foods? Yes, you know it very well. These are the carbohydrates and fats. They are the major energy giving food for our body. Rest about everything you know. Protein are the bodybuilding foods. Vitamins and minerals help us to fight against the diseases, and water and roughage is helpful for our digestion and maintaining the balance of our body. Clear? Next is, in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organisms without killing it? Whenever you see an MCQ question, don't be in a hurry. Read the question properly because it is the trend of CBSE to twist and turn the MCQ questions. They never give you straight question in MCQ. Okay, so always read the question thoroughly. ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड ले लेता है बट इट डज नॉट किल इट, उसको मारता नहीं है? ऑप्शंस आर सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, parasitic, holozoic and autotrophic nutrition. I hope with all the four the terms you are aware with very well. Saprotrophic means the mode of nutrition in which an organism takes its food from dead and decayed matter. जहाँ भी चीज़ें सड़ रही होंगी या मॉइस्ट होंगी बहुत दिनों से, उसके ऊपर आपने एक एग्जांपल है, देखो फंगस ग्रो करते हुए देखा हुआ है. तो जब उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन डेड डिकेड मैटर से कोई अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है तो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड टेक्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम इट एंड डज नॉट किल इट. सपोज हमारी बॉडी में आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं तो उनके पेट में अक्सर दर्द होता है. क्यों? क्योंकि उनके इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे वर्म्स रहते हैं, लाइक राउंड वर्म, टेप वर्म, तो लीचेस वगैरह हैं. ये सब इंटेस्टाइन में रहती हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करती हैं क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं. या और भी कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, जुएं, लाइस विच लिव इन आवर हेयर एंड इट सक्स आवर ब्लड्स बट इट डजंट किल इट. ओके, so this type of mode of nutrition is called parasitic nutrition. Holozoic mode of nutrition is like we find in amoeba. अमीबा जहाँ पे भी सॉलिड फूड देखता है उसको एनगल्फ करता है, डाइजेस्ट करता है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें वो सॉलिड फूड पार्टिकल्स लेता है. एंड लास्ट वन इज़ वेरी सिंपल, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स व्हाट? सेल्फ, ओन. द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड विथ इनऑर्गेनिक मटीरियल्स टू मेक ऑर्गेनिक मटीरियल. अच्छा, ये भी रिमेंबर ज़रूर करिएगा कि इनऑर्गेनिक मटीरियल क्या होता है. समटाइम्स क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन दैट व्हाट आर द इनऑर्गेनिक मटीरियल्स विच अ प्लांट यूजेस टू मेक इट्स फूड. तो इनऑर्गेनिक मटीरियल क्या है? वाटर, CO2 एंड सनलाइट. विद दीज थ्री थिंग्स plant prepare its organic food. And what is that organic food? That organic food is nothing but glucose. So this type of nutrition is called autotrophic nutrition. Now what do you think? What is the option among all the four? Yes, it is parasitic nutrition. Now next question, the mode of nutrition found in fungi. अभी तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि फंगस किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन डिराइव करता है. पैरासिटिक, होलोजोइक
autotrophic or it is saprotrophic? Yes, the correct answer is saprotrophic mode of nutrition. If you know the answer, you just write down and at the end of the video calculate your marks. Okay, now next question. Roots of the plant absorb water from the soil through the process of diffusion, transpiration, osmosis और none of these. क्लास 9th में हमने पढ़ा था जाइलम वेसल्स होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं प्लांट्स में. तो ये कौन से प्रोसेस से पानी एब्जॉर्ब करते हैं? इज इट डिफ्यूजन? एंड व्हाट इज डिफ्यूजन? यू नो ना, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? This is another one more important question. Transpiration is when there is a lot of evaporation from the surface of leaf, it creates a pressure difference in the plants, which is known as suction pressure, due to which a pull is created and water is absorbed up to the leaves, and this is known as transpiration. Osmosis is very similar to diffusion, but it is the transportation of water molecules from a region of higher concentration to lower concentration. So now tell me fastly, which is the correct option? Yes, the correct option will be osmosis. Okay, now next question. The site of photosynthesis in the cells of leaf is, now beta focus, this is very important question. It has been asked many a times in board examination. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीफ के अंदर में आपने पढ़ा है कि लीफ के अंदर भी एक ऑर्गेनेली होती है, उस ऑर्गेनेली के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. तो वो कौन सी जगह है? साइट मीन्स द प्लेस. नेम द प्लेस वेयर इनसाइड द लीफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट. रिमेंबर द वर्ड साइट. ओके, क्लोरोप्लास्ट में यू नो द फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही there are green colored pigment known as chlorophyll, and only these pigments have the ability to trap sunlight energy. अगर क्लोरोफिल नहीं होगा प्लांट में तो हमारा ग्लूकोज कभी भी नहीं बन पाएगा. तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, और स्टोमेटा से जो हमें CO2 मिला है और वाटर जो हमें रूट ने एब्जॉर्ब करके दिया है उसको कंबाइन करके ये ग्लूकोज बनाता है. क्लियर? Now next question is, in amoeba food is digested in. अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, याद है आपको. और फूड ये कैसे डाइजेस्ट करता है? क्योंकि इसके पास तो हाथ पैर कुछ होते ही नहीं है. इट इज़ अ सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सो द फूड इज डाइजेस्टेड इन वेदर फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सूडोपोडिया और द क्लोरोप्लास्ट. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज फूड वैक्यूल. अमीबा क्या करता है? इट रिसाइड्स इन वाटर एंड वेरेवर इट फाइंड इट्स फूड it engulf it with the help of its pseudopodia, which are the false foot of amoeba, and after engulfing it forms a food vacuole, and then the digestive juices act on this food vacuole, break down the food molecules into simple absorbable molecules, and then that is assimilated in that one cell of amoeba, single cell of amoeba's body. Okay, clear? Next question. Which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in saliva? See this word, lacking in saliva. It means नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि हमारे माउथ कैविटी में के सलाइवा के अंदर अगर ये एंजाइम नहीं होगा सलाइवरी अमाइलेज, तो ये चारों में से क्या काम नहीं हो पाएगा? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, और फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. कम ऑन, टेल मी द आंसर. व्हाट विल बी द आंसर? आपने डाइजेशन अच्छे से पढ़ा है और मैंने आपको ये बोला था बहुत अच्छे से कि द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ. तो सलाइवरी एमाइलेज का क्या फंक्शन होता था? यस, इट इज़ स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर. अमाइलेज क्या करता है? माउथ के अंदर फर्स्ट स्टेप डाइजेशन का शुरू करता है, जहाँ पर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स molecule than the carbohydrate molecule. So that is converted into sugar by salivary amylase.
Clear? Next question. Which region of the alimentary canal absorbs the digested food? Which region of alimentary canal absorbs the digested food? Is it stomach, small intestine, large intestine or the liver? आपने सब डाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. एलिमेंट्री कैनाल इज़ नथिंग बट द डाइजेस्टिव ट्यूब. जो माउथ से एनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब हमारी बॉडी में जा रही है, दैट इज़ नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. सो द करेक्ट आंसर इज yes, the correct answer is small intestine. In small intestine, the digested food is absorbed via villi. villi में रिच ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वहाँ से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं? ब्लड वेसल्स में, एंड फ्रॉम देयर इट रीचेस टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The contraction and expansion movement of the walls of food pipe is called easy. फूड पाइप यानी क्या? इसोफेगस. इसोफेगस में जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो फूड धीरे धीरे नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं? इज इट ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और डाइजेशन? आई नो यू नो द आंसर वेरी वेल. यस, इट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. बिकॉज ट्रांसलोकेशन क्या था? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. दिस इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन. इसको भी याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन. ट्रांसपिरेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर इन अर्लियर क्वेश्चन. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो फूड हम लेते हैं माउथ में वो स्टमक तक डायरेक्टली स्लिप होकर के नहीं आता है. इट कम्स वाया रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ ईसोफेगस. इस वजह इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. इसका बेनिफिट क्या है बेटा? कि फूड कभी भी आप किसी भी डायरेक्शन में सोए रहेंगे, कभी भी फूड जो है डाइजेशन के प्रोसेस में रिवर्स नहीं आएगा. अब ये नहीं है कि अगर आप पेड़ पर उल्टा लटक करके कोई फूड खा रहे हैं तो अब आप उल्टे हैं, आपकी फूड पाइप उल्टी हो गई है तो अब फूड मुँह ही में रह जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं. नहीं, आप किसी भी पोजीशन में होंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड हमेशा आपका माउथ से स्टमक में जाएगा, स्टमक से रिवर्स नहीं आएगा. ठीक है. नेक्स्ट. When a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue black in color. बहुत easy है, बहुत सारी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है. This indicates that rice water contains, राइस वाटर में चारों में से कौन सा न्यूट्रिएंट होगा? Is it fat, proteins, starch or simple proteins? Yes, the correct answer is starch. You all know that rice contains a lot of carbohydrate. It is an energy giving food. तो carbohydrates यानी उसमें क्या है? Starch. And it is only the starch which gives blue black color with iodine solution. Clear? Easy? Okay. Now next question. The exit of unabsorbed food material is regulated by. Exit of unabsorbed food material, जो खाना एब्जॉर्ब नहीं होता है उस फूड का जो पास होके लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसका रिमूवल कैसे रेगुलेट होता है? इज इट रेगुलेटेड बाय लीवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन और द एनल स्पिंक्चर? जस्ट थिंक. एग्जिट होनी है, अनएब्जॉर्ब फूड का एग्जिट होना है वाया एनस, तो कौन कंट्रोल करेगा? यस, इट इज़ एनल स्पिंक्चर. स्मॉल इंटेस्टाइन हो नहीं सकता है क्योंकि वहाँ एब्जॉर्प्शन होती है, लीवर में दूसरे काम होते हैं, एनस से फूड का रिमूवल होता है, बट रिमूवल कब होना है ये कंट्रोल होता है एनल स्पिंक्चर से. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? इस वर्ड पे ध्यान देना, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी दोनों होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में दोनों होते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक, उसी तरह से प्लांट्स में भी दोनों रेस्पिरेशन होते हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इज इट लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, CO2 वाटर एंड एनर्जी, इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी और दी पायरुवेट? जस्ट थिंक. यस, इट इज इथेनॉल CO2 and energy, because CO2 water and energy is released in aerobic respiration. Clear?
Okay, now we'll move to next question. What are the products obtained by sorry, we have completed this question. Question number 13. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in. Now I'll give you a concept related to this because many of you have doubts in glycolysis and Krebs cycle and in whole the process of respiration. देखो बेटा, स्टमक में जो हमारा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. इसको भी याद रखना. समटाइम्स क्वेश्चन कम्स कि नेम द ऑर्गन, नेम द पार्ट वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. सो द आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन. So when the food is completely digested, it is absorbed via blood vessels through villi, and from there the blood vessels take up all the nutrients and they supply to each and every cell of the body. Now the nutrients have arrived in our cell. यानी सेल के अंदर हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट फूड मटेरियल था, क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब कुछ किस में टूट चुके थे? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स में. तो ये ग्लूकोज अब हमारे सेल तक आ गया, हर सेल तक बॉडी के. अब क्या होगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पर दिस ग्लूकोज विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पायरुवेट. पायरुवेट का ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म के अंदर, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. समझ आया यहाँ तक? नाउ व्हाट हैपन्स? द सेकेंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट्स. दिस पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड, इट मूव्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया वेयर this 3 carbon compound is further broken down into CO2, water and energy. So this was whole respiration process. और जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में वो C3 कार्बन कंपाउंड टूट के CO2 बनाता है, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करता है, उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल. तो कंफ्यूज नहीं होना है. रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ 2 सब प्रोसेसेस, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल. ग्लाइकोलाइसिस क्या है? जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में. और क्रेब्स साइकिल क्या है? जब साइटोप्लाज्म से पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और वो पायरुवेट CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करता है. तो दैट इज़ क्रेब्स साइकिल. तो अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water, energy takes place in mitochondria. समझ में आ गया? फिर भी यदि you have doubts, just write in chats. I will explain you later. Okay? Now next question. Glycolysis process occurs in which part of the cell? Again अभी समझाया था आपको मैंने. ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में चेंज होता है, वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्डअप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स. क्रैम्प्स यानी दर्द होना. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज किसी दिन कर लेते हैं या मेहनत किसी दिन ज़्यादा करते हैं तो अगले दिन शरीर में हल्का सा पेन शुरू हो जाता है और वो पेन धीरे धीरे 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है. तो वो कौन सा सब्सटेंस है जो हम उस फिजिकल एक्सरसाइज में हमारी बॉडी में फॉर्म हुआ है? सेम चीज़ बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होती है उस दौरान जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं. एंड दिस ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड and small amount of energy, hardly 2 ATPs of energy. So the correct answer will be lactic acid and energy. And due to this lactic acid, formation of this lactic acid, we feel cramps in our body. Okay. Now next question. Name the pores in a leaf through which respiratory exchange of gases takes place. लीफ में कौन से पोर्स हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? इज इट लेंटिसेल्स, वैक्यूल्स, xylem or stomata? Yes, the correct answer will be stomata. Stomata से ही CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है. ठीक है. नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, ये तो बहुत ईजी है, आपने पढ़ाई है, कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया. यस, द करेक्ट आंसर इज
हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है हमारे आरबीसी में, और फिर पूरे बॉडी के सेल्स तक वो ब्लड सर्कुलेट होता है और इस तरीके से हर सेल तक क्या पहुंच जाती है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ये तो बहुत ईजी है, आपने पढ़ा है 9th में भी, इट इज़ xylem. Next, the movement of food in phloem is called, what is called, अभी बताया था मैंने, it is called translocation. प्लांट्स में लीव्स जो हैं, जो फूड बनाती हैं, वो पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अ ब्लड वेसल विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट to entire body is artery, capillary, veins or hemoglobin. Which one? Artery, capillary, veins और hemoglobin. हार्ट से जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, yes, it is artery, because vein collect blood from every part of the body and supply it again back to heart. Very good. Now next question is, name a circulatory fluid in the body other than ब्लड। ब्लड तो पूरी बॉडी में बह रहा है, ये हमें पता है, इसके अलावा इन चारों में से कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो बॉडी में सर्कुलेट होता है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, लिम्फ और प्लाज्मा। यस, इट इज़ लिम्फ। लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम बनाता है हमारी बॉडी में। लिम्फ क्या करता है, जिस सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जिस तरह से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, उसी तरह से ये एक कलरलेस फ्लूइड है जो बॉडी में से सारी ही वेस्ट चीज़ों को ले आ करके वापस वेन्स में डाल देता है, और वेन्स उनको कहाँ डाल देती हैं, वापस हार्ट में डाल देती हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी लिम्फ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। नाउ दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 5 मार्क्स 3 मार्क्स का आता है हमेशा ये, ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इज इट यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल और यूरेटर, विच वन? यस, वेरी सिंपल, इट इज़ यूरेटर। किडनी से 2 ट्यूब्स निकलती हैं, लेफ्ट और राइट दोनों ही किडनी से, जिनको यूरेटर्स बोलते हैं। These ureters, they get connected to the urinary bladder where our urine is collected and stored for the time, and then via urethra we release the urine. Clear? Okay, now the next question, which part of nephron allows the selective reabsorption of useful substances like glucose, amino acids, salts and water into the blood capillaries? याद आया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कहाँ पर होता था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद होगा तो उसमें 3 मेन पार्ट्स होते थे, ठीक है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलस, बॉमेंस कैप्सूल, उसके बाद हेनलीज लूप, यू ट्यूब्यूल जिसको हम बोलते हैं, एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट। तो जो हेनलीज लूप था, यू ट्यूब, जहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होती है, वहीं पर जब हमारा फिल्टर्ड ब्लड आता है तो उसमें से मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का उसी हेनलीज लूप में से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और बाकी जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यूरिया है, अमीनो एसिड्स जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं, जिसको हम यूरिन कहते हैं। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। डर्टी ब्लड को फिल्टर करने का पूछा जा रहा है, बच्चे लंग्स लिख करके आ जाते हैं। इज इट लंग्स, हार्ट, लंग्स, यूरेटर और किडनी? द करेक्ट आंसर विल बी किडनीज, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन ऐड और CO2 रिमूव करने का काम करता है, लेकिन ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनीज करती हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the procedure used for cleaning the blood of a person by separating urea from it is called osmosis, filtration, dialysis or double circulation. इस क्वेश्चन को समझो। The procedure used for cleaning the blood of a person by separating urea. अगर किसी पर्सन की किडनी सही से काम नहीं करती है
तब हम ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं, उसके ब्लड को बाहर लाते हैं, वहाँ पर एक डायलाइजिंग सॉल्यूशन में उसको डालते हैं जिसमें से वो यूरिया एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फिर हमारे ब्लड के जैसे ही, नॉर्मल ब्लड के जैसे ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके प्योरीफाइड ब्लड बॉडी में वापस भेज दिया जाता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नथिंग बट डायलिसिस. इज इट क्लियर बेटा? ओके, नाउ आई विल स्टॉप टुडे. आई होप you have understood the concepts. Even though if you are facing any difficulty in any topic or in any question, just write in chats and send it to me. I will make further videos or I'll give you necessary notes for that. Okay, and revise all the topics. Next, if you will tell me, I will make MCQ for light and chemical reaction also. Just inform me. Okay, thank you बच्चों.